A very good morning, ninth class. I hope you all are well, and I am glad that now you all have started doing your assignments by yourself. Instead of copying from internet, now you all are trying to do all assignments by your own. It's very good. Keep it up. Keep trying. If you have any query, you can ask me anytime that you know very well. So as we are doing revision nowadays, so chapter 1 is completed. Now today we are going to start a revision of chapter 2, is matter around us pure. So today we are going to do revision related to solution, suspension, colloids and solubility. So let's start today's class. So first question is define solution. Give an example of. First one is gas in liquid solution. Second, gas in gas solution. So solution. Solution is homogeneous mixture of two or more substances. Solution क्या है? एक homogeneous mixture है. Homogeneous mixture क्या होते हैं? जिनका composition सेम होता है. मीन्स वो सोल्यूशन जिसमें आप सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को अलग अलग ना देखें, वो एकदम प्रॉपरली डिजॉल्व हो जाए, लाइक शुगर इन वाटर. फाइन. सो सोल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है टू या टू से ज़्यादा सब्सटेंसेस का. सब्सटेंसेस आर प्योर सब्सटेंस. देन एग्जाम्पल गैस इन लिक्विड. इफ़ यू रिमेंबर सोल्यूशन हैज़ टू components, solute and solvent. सो गैस इन लिक्विड, एक एग्जाम्पल जिसमें लिक्विड में गैस होती है, दैट इज कोल्ड ड्रिंक, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स किया जाता है. सेकेंड इज गैस इन गैस सोल्यूशन, दैट इज एयर. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन. फाइन. सो गैस in gas solution is air. Now next come to question number 2. Name the dispersed phase, dispersed medium and type of colloid in the following. Means इसमें आपको colloids दिए हुए हैं, एक fog है, एक milk है. आप में इसमें ये बताना है कि कौन सा डिस्पर्स्ड फेज है और कौन सा डिस्पर्स्ड मीडियम है. सो फॉग में क्या होता है? फॉग कैसे बनता है? जब जो वाटर प्रेजेंट है उसके अंदर वो कंडेंस हो जाता है. ठीक है. तो बेसिकली क्या है? गैस ज़्यादा क्वांटिटी में, मीन्स एयर ज़्यादा क्वांटिटी में और लिक्विड कम. सो डिस्पर्स्ड मीडियम हुआ गैस, डिस्पर्स्ड फेज हुआ लिक्विड. ऐसे ही मिल्क का डिस्पर्स्ड मीडियम भी लिक्विड है एंड डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड है. इफ़ यू हैव बुक, एनसीईआरटी बुक, देयर इज़ अ टेबल for different types of colloidal solutions. Start learning that. Fine. And if you don't have, then I'll try to give you that table. Next question is question number 3, A part. What are heterogeneous mixtures? Second, why mixtures does not have fixed melting or boiling point? Give 2 reasons. So first of all, try to answer in points always. If not, then try to answer precisely. Short answers दीजिए, precise answers with good terms. ऐसा नहीं होना चाहिए that you are writing two big paragraphs and those are meaningless. So try to write less but accurate. So answer A part, heterogeneous mixture. Those mixture whose composition is not uniform throughout are called heterogeneous mixtures. वो mixtures जिनकी composition जो है वो पूरे solution में same नहीं होती है. If you remember, I showed you solution of soil and water. So in that you were able to recognize where is soil and where is water. So that kind of solutions were heterogeneous mixtures.
नाउ सेकेंड पार्ट, वाई मिक्सचर्स डजेंट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मिक्सचर्स होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सेम क्यों नहीं होता है? सो रीज़न, mixture does not have fixed melting and boiling point due to the following reasons. First, they do not have fixed composition. इसमें जो composition है वो fix नहीं होती है. If you remember, I gave you that time an example of प्रिपरेशन ऑफ ब्राउन कलर. मैंने बोला था अगर ब्राउन कलर बनाएंगे ब्लैक एंड रेड से तो सब अलग अलग बनाएंगे, ठीक है. किसी में ब्लैक ज़्यादा है, किसी में रेड ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स आप ले रहे हैं बट उनका रेशियो सेम नहीं है तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी तो डिफरेंट होगा, क्योंकि टू डिफरेंट थिंग्स हैं. और मिक्सचर में कभी भी न्यू सब्सटेंस जो बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ न्यू नहीं होती हैं. जो मिक्सचर बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो भी हम उसमें मटेरियल यूज़ करते हैं, जो भी सब्सटेंस यूज़ करते हैं, उन्हीं की होती है. सो फर्स्ट इज दे डू नॉट हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन. सेकेंड, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, मीन्स जब कोई न्यू सब्सटेंस बनेगा ही नहीं, जो हमने सब्सटेंसेस यूज़ किए हैं वही हैं, तो इसी वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होता या फिर फिक्स्ड नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए पार्ट, डिफाइन टिंडल इफेक्ट. सेकेंड पार्ट, वाई इज वाटर कंसिडर्ड एज कंपाउंड. So answer, Tyndall effect. It is a scattering of light as a light beam passes through colloidal solution. ये क्या है? स्कैटरिंग मतलब फैलना, लाइट का फैलना, वो भी कब? जब लाइट जो है कोलोइडल सोल्यूशन से पास होती है. इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था, अगर रूम में किसी भी कॉर्नर में, एक डार्क रूम है, उसमें किसी भी कॉर्नर से थोड़ी सी भी लाइट आती है तो वो पूरे रूम में फैल जाती है. दैट इज़ स्कैटरिंग ऑफ लाइट. और यही अगर आप कोलोइडल सोल्यूशन, नाउ कौन सा कोलोइडल सोल्यूशन आपने देखा है यहाँ पे? मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर. तो अगर आप उसमें से इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे देन दैट इज़ नोन एज टिंडल इफेक्ट. नाउ नेक्स्ट कम टू सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वाई इज़ वाटर कंसिडर्ड एज अ कंपाउंड. फॉर दैट अगर पूछा गया है कि वाटर को कंपाउंड क्यों कहा गया है, देन प्लीज़ राइट डाउन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड. रीज़न में आप क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड. फाइन, ये याद रखिए. अगर पूछा गया है कोल्ड ड्रिंक इज़ अ सोल्यूशन, वाई, तो सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे. चॉक पाउडर एंड वाटर इज़ अ सस्पेंशन, तो आप उसमें सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे. तो यहाँ क्या पूछा गया है? वाई इज़ वाटर कंसिडर्ड एज कंपाउंड. वाटर को कंपाउंड क्यों कहा गया है? तो आप किसकी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे? कंपाउंड्स की. यस, वाटर इज़ अ कंपाउंड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. फर्स्ट, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस chemically reacts to form new substance water with totally different properties. बेसिकली होता क्या है? कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिसमें दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, दो सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं, लेकिन जो न्यू सब्सटेंस बनता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है. अब यहाँ पर हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, बट जब ये दोनों गैसेस रिएक्ट करती हैं केमिकली तो बनाती क्या है? लिक्विड, वाटर बनाती है. अब वाटर मीन्स लिक्विड एंड गैसेस की प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट हैं एज यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 1. सेकेंड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज इन फिक्स्ड रेशो. अब मिक्सचर में हमने पढ़ा था कि उसमें फिक्स्ड कॉम्पोजिशन मतलब फिक्स्ड रेशो में नहीं होते हैं, लेकिन कंपाउंड्स में क्या होता है? फिक्स्ड रेशो होता है. जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो हैं फिक्स्ड रेशो में है. किस रेशो में? 2:1. थर्ड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड. मीन्स वाटर में से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैसे सेपरेट किया जा सकता है? बाय केमिकल मेथड. विच मेथड? इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन ऑफ द कंपाउंड. सो वाटर में से जब कंट्रोल्ड कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो उसमें से हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है. फाइन.
Now let's come to question number 5. On dissolving chalk powder in water a suspension is obtained. अब ये कंडीशन दी गई है कि आप जब चॉक पाउडर को पानी में डिजोल्व करते हैं तो क्या बन रहा है, एक सस्पेंशन. Give any 4 reasons to support the fact that mixture so obtained is a suspension only. अब इसके लिए आपको 4 रीज़न देने हैं किसके सपोर्ट में कि ये जो मिक्सचर है वो एक सस्पेंशन है. अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको कहा था अगर पूछा है कंपाउंड क्यों है तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे. तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ये सस्पेंशन क्यों है, तो किसकी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे, सस्पेंशन की. सो इट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ये क्या है, हेट्रोजीनियस है. इट इज़ ओपेक. ओपेक आई होप यू नो व्हेन द लाइट इज़ नॉट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन. ओपेक जब लाइट रे पास नहीं हो सकती है, जिसमें से आपको क्लियरली नहीं दिखता है, ओपेक. थर्ड, द पार्टिकल्स ऑफ द चॉक कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. अगर आप चॉक पार्टिकल्स को सेपरेट करना चाहते हैं वाटर से तो वो सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट हो सकता है. फोर्थ पॉइंट, चॉक पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेकेड आई. चॉक पार्टिकल्स आपको नेकेड आई मीन्स विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट के भी दिख जाते हैं. सो दीज 4 वर द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन. नाउ नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 6. इज एल्कोहल a mixture or a pure substance? Why? एल्कोहल एक मिक्सचर है या फिर एक प्योर सब्सटेंस है. फर्स्ट पार्ट इज दिस. सेकेंड, वाई, रीज़न देना है आपको. सो फर्स्ट पार्ट को आप एक्सप्लेन करेंगे. एल्कोहल इज प्योर सब्सटेंस एज. पहले पार्ट का आंसर क्या है कि हाँ एल्कोहल एक प्योर सब्सटेंस है. अब एज से क्या होगा, रीज़न शुरू होगा. एज इट कंटेन्स ओनली 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स. ये आपको पहले ही बताया है दैट प्योर सब्सटेंसेस कंटेन ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स. तो यहाँ पर भी क्या है, एल्कोहल इज प्योर सब्सटेंस बिकॉज या फिर एज इट कंटेन्स ओनली 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स. फाइन. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. डू मिक्सचर्स हैव डेफिनेट केमिकल फॉर्मूला? क्या जो मिक्सचर्स हैं उनका केमिकल फॉर्मूला फिक्स्ड होता है? नाउ इस क्वेश्चन का आंसर आप हाँ और ना में दे सकते हैं, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर इन क्लास 9th एंड यू हैव टू गिव रीज़न. आपको उस चीज़ का रीज़न देना है. इफ़ दिस क्वेश्चन कम्स इन 2 marks यू कांट से येस एंड नो. 2 marks के क्वेश्चन में आप येस और नो नहीं कह सकते हैं, आपको उसका रीज़न देना ही होगा वेदर इट इज़ आस्क्ड और नॉट. So answer no. Mixtures do not have definite chemical formula, means definite composition, because their composition is not fixed. Chemical formula तो जब बनेगा जब composition fixed होगी. अब mixtures की कोई composition fix है ही नहीं तो वो कैसे chemical formula बनाएगा. मतलब अगर आपकी क्लास में फ्राइडे एक्टिविटी हुई और उसमें बोला है सबने फ्रूट सैलड बनाना है, तो फ्रूट सैलड आप अपनी चॉइस से ही बनाएंगे ना. जिसको एप्पल ज़्यादा पसंद है वो एप्पल ज़्यादा डालेगा, जिसको बनाना पसंद है वो बनाना ज़्यादा डालेगा, जिसको ग्रेप्स पसंद है वो ग्रेप्स ज़्यादा डालेगा उस फ्रूट सैलड में. कभी कंपल्शन तो नहीं होता ना कि आपको 2 बनाना, 1 एप्पल या 10 ग्रेप्स लेने. ऐसे कॉम्पोजिशन तो आपको फिक्स नहीं दे सकते हैं, इसीलिए मिक्सचर्स की कॉम्पोजिशन सेम नहीं होती है. दैट्स वाई उनका केमिकल फॉर्मूला भी सेम नहीं हो सकता है. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 8. Define solubility. Write any 3 factors that affect it. Solubility लिखेंगे, उसके बाद 3 factors जो इसको affect कर रहे हैं. So what is solubility? The ability of a given substance that is solute to dissolve in a solvent. Means एक solvent में कितना solute dissolve हो सकता है, ये कहलाती है उसकी solubility. तो solubility को कितने factors affect करते हैं? 3. Temperature, size of particle and stirring. So first temperature. Solubility increase with increase in temperature. Means जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है. इट्स एज सिंपल एज दैट. गर्म पानी में चीज़ें जल्दी घुल जाती हैं,
ठंडे पानी में चीज़ें घुलने में ज़्यादा टाइम लगाती है। नेक्स्ट, साइज ऑफ पार्टिकल्स, ये भी आप मैंने बात करी थी। अगर शुगर पार्टिकल्स बिग हैं तो वो डिज़ोल्व होने में टाइम लगाएंगे, लेकिन अगर आप पाउडर्ड शुगर लेते हैं तो वो बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है, लाइक ग्लूकोज। सो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन पार्टिकल साइज। जितना छोटा पार्टिकल का साइज होगा उतनी ही जल्दी वो डिज़ोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टरिंग, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी स्टरिंग के साथ। मीन्स जितना ज़्यादा आप उसे स्पून से या किसी रॉड से मिक्स कर देंगे उतनी ही जल्दी वो डिज़ोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स क्या हैं? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स। Solute always present in less quantity, solvent present in large quantity. Water is known as universal solvent. Next and the last question is what are two components of colloids? Colloids के दो components कौन कौन से हैं? Dispersed phase and dispersed medium. Dispersed phase always in less quantity, dispersed medium in large quantity. So with this I am ending up my today's class. I hope your all doubts are clear till suspension, solution and colloids. In next class we will be doing numerical problems. If you have any doubt you can ask me anytime. Stay at home, submit your assignments regularly, and please listen what I am saying in the video. What you all are doing, you are only looking at the notes that I am giving you. You are not listening what I am telling in the video. It is must. We can't write everything on the notes. So try to listen and understand what teachers are trying to say. Good students are always focused on listening skills as well as reading skills. So read and listen both nicely. Prepare your notes and take care. Always study, stay healthy, be happy. Bye. Take care.